Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying this online session. It's a time to learn computer science. You know that computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. As we have started chapter number 3, which is named as computer network. In the previous lecture, we have discussed that a collection of computers that are linked together to share information from one place to another by using a communication medium is called computer network. Today we have to define some terms. First one is routing. First of all, you must know that what is routing. Routing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पाथ सेलेक्ट किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. Data can be transmitted in a single network or from one network to another network. You know very well, a network is a collection of computers. So we can transmit data from one computer to another computer, or data can also be transmitted from one network to another network. We can define routing as a process of taking data from one device and transfer it to another device on a different network. Next is router. You can see a router on your screen. This is the name of a device. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स. We can say a router is a networking device that forwards data packets between computer networks. Routers perform the traffic directing functions on the internet. Data sent through the internet such as a web page or email is in the form of data packets. हम जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो कोई वेब पेज है, कोई ईमेल है या फिर कोई मैसेज है, वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाएगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. अ राउटर इज कनेक्टेड टू टू और मोर डेटा लाइंस फ्रॉम डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स वेयर आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल्स यूज़ होते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. And a router is usually placed at a meeting point of two or more networks. राउटर को या फिर इस डिवाइस को हम दोनों नेटवर्क्स के मिड में रखते हैं ताकि दोनों नेटवर्क्स इजीली डेटा ट्रांसमिट कर सकें. The next topic we are going to learn is routing in the internet. We get the internet service from ISP, where ISP stands for Internet Service Provider. Here, ISP is a company that provides internet connections and services to individuals and organizations. ISP एक ऐसी कंपनी है जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. You can see on your screen the router forward our request according to the header of our message. An internet service provider provides access to the internet. Whether you are at home or work, each time you connect to the internet, your connection is routed through an ISP. आप घर में हैं या वर्किंग प्लेस पे या कहीं पे भी हैं, ISP आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप इंटरनेट के ज़रिए मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नेक्स्ट इज राउटिंग प्रोसेस. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड ट्रांसफ़र इनटू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क. जो भी डेटा हम एंटर करते हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में एंटर किया जाता है. डेटा पैकेट हैज़ टू एड्रेसेस. डेटा पैकेट में टू एड्रेसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सोर्स एड्रेस एंड सेकंड इज़ डेस्टिनेशन एड्रेस. सोर्स हम कहते हैं सेंडर को या सेंड करने वाले को, और डेस्टिनेशन कहते हैं रिसीवर को या रिसीव करने वाले को. सोर्स एड्रेस में हम उस कंप्यूटर का एड्रेस राइट करते हैं जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस में उस कंप्यूटर का एड्रेस राइट किया जाता है जिसे हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, होस्ट ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी, बट होस्ट बी इज़ ऑन अनदर नेटवर्क. देन द होस्ट ए ट्रांसमिट ऑल द डेटा पैकेट्स. द राउटर रिसीव्स द पैकेट्स, चेक्स द राउटिंग टेबल टू सी if it has an entry for the destination address. If the entry exists for the destination address, the router forwards the packet. If the router does not find the entry, the router discards the packet. Here, destination address is used to deliver the data packet at destination. हमें डेस्टिनेशन एड्रेस ये बताता है कि डेटा कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, किस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना है. जिस कंप्यूटर को हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं
उसी कंप्यूटर का एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस में राइट किया जाता है। एंड सोर्स एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस, और सोर्स एड्रेस हमें ये बताता है कि डेटा कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। जिस डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा या जिस कंप्यूटर से ट्रांसफ़र किया जाएगा उसी कंप्यूटर का एड्रेस सोर्स एड्रेस में राइट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ आईपी राउटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ रूल्स बताता है। वेयर आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड यू नो वेरी वेल protocols are the rules that are used in networking. IP performs search for a matching host address, search for a matching network address। ये host का address भी find करता है send करने वाले का, और network address भी find करता है कि किस network के ज़रिए data transfer किया जाएगा। search for a default entry, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फिर ये डिफ़ॉल्ट एंट्री के लिए भी सर्च करता है कि दोनों सूरतों में क्या मैसेज टाइप होना चाहिए। Routing done by IP router when it searches the routing table and decide which interface to end a packet out. The next term we are going to learn is routing tables. Routing table की कोई specific format नहीं होती, इसमें कुछ common things include होती हैं which are destination address. Destination address को हम receivers address भी कह सकते हैं। ये उस कंप्यूटर या फिर उस डिवाइस का एड्रेस होता है जिसे हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। It also includes IP address, where IP stands for Internet Protocol Address. इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने के कुछ रूल्स होते हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। It also includes network interface. We can say routing is carried out in a router by consulting routing table. No unique format for routing tables. Typically, table contains address of a destination, IP address of next hop router. Next hop router एक ऐसी एंट्री है, IP एड्रेस की एंट्री है जो हमें सबसे क्लोजेस्ट राउटर या सबसे नियरेस्ट राउटर का पाथ बताती है, जिसके ज़रिए हम क्लोजेस्ट राउटर को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। It also includes network interface that is to be used for the transferring of data. Now you have to remember the terms router and routing. As we have discussed that राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, और राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पाथ बताता है कि किस पाथ के ज़रिए डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।